Good morning, students. Today we will be studying about the chapter 3 of an English literature book, that is The Violets. Let's start. The sun came out and shone on the leafless trees that cast hardly any shadows on the pathway through the woods. Surely spring is coming, the bird said. It must be time to wake the flowers. The thrush and the lark and the linnet sang sweetly. A royal robin flew up from the snow and perched upon the branch. A little rag boy at the end of the wood stopped and listened. Surely spring is coming, he too said, and mother now will get well. The flowers that all through the winter had been sleeping in the ground heard the birds and the boy. However, they were drowsy and longed to sleep on. A primrose leaf peeped through the ground but soon went in shimmering with cold. Then some brave violets opened their blue eyes and poked their heads out meticulously beneath the tangle of the wood. The twittering of the birds was enchanting, but they must soon find a cozy home or else they would die of cold. तो सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी पूरे जंगल में छा गई थी. एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड चर्पिंग मेरीली. और हर ओर से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी. तभी एक छोटा सा लड़का जिसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे जंगलों से होकर के गुजर रहा होता है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और सोचने लगता है कि लगता है अब स्प्रिंग सीज़न आने वाला है और एक बार फिर से मदर अर्थ ठीक हो जाएंगी. मतलब फिर से एक बार पूरे जंगल में हरियाली छा जाएगी, फ्लावर्स खिलने लगेंगे और जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा. वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसकी नज़र वायलेट्स के ऊपर पड़ती है. वायलेट्स मतलब वायलेट्स आर टाइप ऑफ फ्लावर्स विच आर ब्लू इन कलर. तो उन वायलेट्स को देखता है और सोचता है कि वायलेट्स कितने ब्रेव है जो ठंड की परवाह किए बिना खिलने की कोशिश कर रहे हैं. वो वायलेट्स की ब्यूटी को देख करके बहुत खुश होता है. उसे बहुत सुंदर लगते हैं वो वायलेट्स. The little rat boy came by. He saw the tender flowers and, stooping down, gathered them one by one with their soil and roots and put them into a little flower pot that hung upon his arm. Like the violets, he too was brave, for he gave the flowers a new ground without taking them away from their roots. Dear flowers, he said with a sigh, you will buy poor mother some breakfast and medicine. And tying them into little bunches, he carried them to the town. वो छोटा सा लड़का उन सॉफ्ट ब्यूटीफुल वायलेट्स के पास आता है और बहुत प्यार से उनको उनके जड़ और मिट्टी के साथ तोड़कर एक फ्लावर पॉट में डालता है और अपने कंधे पर उठा करके टाउन की तरफ चलने लगता है. रास्ते में जब वो फ्लावर्स को अपने कंधों पर उठा करके जा रहा होता है तो फ्लावर्स से कहता है कि टुडे these flowers would help him to buy medicines and breakfast for his sick mother. इन फ्लावर्स को टाउन में ले जा कर के वो सेल करेगा और उनसे जो भी पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी माँ के लिए दवाइयों और ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करेगा. All morning he stood by the roadside offering his flowers to the passers-by, but no one took any notice of him and his face grew troubled and sad. They would have withered away in this cold without their soil and roots, he murmured to himself, and if they die, poor mother will have no breakfast and medicine. Oh, poor mother, oh, poor flowers, he said longingly, and the violets heard him and sighed. पूरे दिन वो उन फ्लावर्स को रोड के किनारे खड़े होकर के आने जाने वाले लोगों से उन फ्लावर्स को ख़रीदने के लिए रिक्वेस्ट करता है, बट कोई भी उसे नोटिस नहीं करता और कोई भी उसके फ्लावर्स ख़रीदने नहीं आता. दिन बीत जाने के बाद वो उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो अपनी माँ के लिए दवाइयों का इंतज़ाम कैसे करेगा. और बहुत डेस्परेटली ये सोचने लगता है, बहुत कोशिश करता है कि कोई भी कैसे भी करके उससे कुछ फ्लावर्स ले ले ताकि वो उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाइयों का इंतज़ाम कर सके. ना Oh, they must be the brave violets, the first ones to fight the winter. They look so fresh. A lady admired the flowers as she passed by. तभी एक लेडी आती है और उन फ्लावर्स को देख करके बहुत इम्प्रेस होती है और वो पहचान जाती है कि वो कौन से फ्लावर्स हैं, वायलेट्स. शी
gets very much impressed with the beauty of the flowers. Then she bought them and carried them to a beautiful house in which she lived, and gave them some water, touching them so softly that the poor violets forgot all about the cold and the woods. They looked gratefully up into her face. वो लेडी उन फ्लावर्स को उस लड़के से ख़रीदती है और उन्हें ले करके अपने ब्यूटीफुल हाउस की तरफ चली जाती है। वहाँ ले जा कर के उन फ्लावर्स को वो बहुत ही प्यार से शी वाटर्स द फ्लावर्स विथ लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। Mother, said the boy, see, I have brought some bread and medicine. The brave violet sent it to you. वो लड़का उन फ्लावर्स को बेचने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो अपनी माँ के लिए ब्रेकफास्ट और मेडिसिन लेकर के जाता है और अपनी माँ को वायलेट्स के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उन वायलेट्स को बेचने के बाद उसे पैसे मिले जिनकी मदद से वो अपनी माँ के लिए ब्रेड और मेडिसिन ला पाया। The birds watched everything from a distance and said, the brave violets, the boy and the lady have conquered the winter. It's time the others must too. And they went on singing till the ground was covered with flowers, till the leaves had hidden the brown branches of the trees, and the pathway through the woods was all shade, except for the sun rays that fell like tiny spots. Birds दूर से ये सब कुछ देखते हैं और कहते हैं कि उन ब्रेव वायलेट्स ने, उस छोटे से लड़के ने और उस लेडी ने जो भी सोचा उसको पाने के लिए हर डिफ़िकल्टी से लड़कर आखिर अपने विश को पूरा कर ही लिया। उसी तरह अगर हम सब भी ठान ले कि हमें कुछ पाना है, हमें कुछ करना है और उसको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दे, अपने बेस्ट एफ़र्ट्स लगा दे, तो हम हर डिफ़िकल्टी को, हर हार्डशिप को पीछे छोड़ सकते हैं और उनके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। बिकॉज वी ऑल नो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। नाउ लेट्स टेक अ क्विक ग्लांस ओवर ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट वन, पर्च्ड। पर्च्ड अपॉन अ ब्रांच मतलब ब्रांच के ऊपर बैठना। रैग्ड मतलब ओल्ड एंड टॉर्न, फटा हुआ और पुराना। ड्राउजी मतलब थक जाना, टायर्ड। टैंगल मतलब उलझा हुआ होना, मेस। एन्चैंटिंग मतलब मेस्मराइजिंग, चार्मिंग, मन को मोह लेने वाला। टेंडर मीन्स सॉफ्ट, बहुत मुलायम। स्टूपिंग बेंड करना, झुकना। साय टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। विदर्ड मतलब वेस्टेड, डिस्ट्रॉय हो जाना। मर्मट मतलब खुसफुसाना। लॉन्जिंगली डेस्परेटली किसी चीज़ को चाहना, बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को चाहना। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।